Today we shall discuss a very important topic in criticism, that is romantic criticism. Dear students, as you are aware that the romantic period is a very important period in English literature. Poets like William Wordsworth, S.T. Coleridge, John Keats, Shelley are the representative poets of this period. And it is to be noted that almost all the romantic poets were also a very good critics. They had their own opinion about poetry, about the function of poetry, about the nature of poetry. So it becomes very important for us to analyze and understand the views of different romantic poets about poetry. So in this regard, first of all, let us try to understand what is romanticism. Before we understand romantic criticism, let us try to have some idea about romantic literature. Romanticism was a literary movement in the 18th century and early 19th century in Europe. Originally, it started in Germany, but later on it migrated to other countries, to other parts of Europe, including Great Britain. Romanticism was largely a reaction against the strictures of classicism. So this is very important point that you should note. Romanticism was a reaction against neoclassical school of poetry. You know, in literature, generally every new period or every new school is a reaction against a previous school. The same thing happens with romantic poetry also. Romantic poetry was a reaction against the neoclassical school of poetry led by Alexander Pope. So to understand romanticism, to understand the romantic movement in literature, we must have some knowledge, some understanding of the neoclassical school of poetry. So before I discuss about the romantic criticism, about the characteristics of Wordsworth's theory of poetry, let me tell you in general the main characteristics of romantic poetry. First of all, the romanticism or romantic poetry had a great respect for nature. A very important aspect of romantic movement or romantic poetry is a respect for nature. The romantic poets were great lover of nature. For them, nature was everything. As you are aware that in the neoclassical school, nature was relegated to a secondary position. Man was given utmost importance. Man, society, culture, manner, these were the main concerns of the neoclassical poets. But the romantic poets reacted against these characteristics of neoclassical poetry. They believed, the romantic poets like Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, believed that nature is very important. Nature plays a very prominent role in the life of human beings and we cannot neglect nature. And also they were attracted towards nature because this was the time when the industrial revolution was taking place in England, in Europe. And because of the industrial revolution, much pollution and much destruction was being created. Now, everywhere there was industrialization, urbanization, the establishment of factories, the establishment of industries, construction of railway routes. These all led to severe destruction of nature, and the romantic poets realized that if nature continues to be destructed, then this is going to be a great loss for humankind, and therefore perhaps they reacted against this tendency in contemporary society, and they gave their voice for the preservation and conservation of nature. So the first characteristics of romantic poetry or romanticism was
the love or the respect for nature. Now let us see the second characteristics of romantic poetry. The romantic poets had a great respect for emotion. This is very important, this is very crucial as far as romantic poetry is concerned. बिना इमोशन के पोइट्री नहीं हो सकती। जो रोमांटिक पोइट थे उनका ये मानना था कि बिना इमोशन के पोइट्री नहीं हो सकती। हम ये देखते हैं कि जो नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है उसमें इमोशंस के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं था। उसमें रीजन था, उसमें रैशनैलिटी थी, उसमें थिंकिंग था। लेकिन जो रोमांटिक पोइट थे इनका ये मानना था कि पोइट्री में इमोशन होना चाहिए। इमोशन शुड प्ले ए क्रूशियल रोल इन पोइट्री। फॉर देम इमोशन एंड इमेजिनेशन was very important. For the neoclassical poets, reason was important. For them, thought was important, reason was important. But for the romantic poets, emotion was very important. For them, imagination was very important. So we can say that the second characteristics of romantic poet or romantic poetry was the expression of emotions. In fact, Wordsworth writes that poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions. Wordsworth ये कहता है कि पोइट्री क्या है, तो पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। कि पोइट्री कुछ नहीं है, पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो हमारी जो इमोशंस हैं, जो हमारी जो सेंसिबिलिटीज है, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये पोइट्री होती है, ये नेचुरल पोइट्री होती है। जो रोमांटिक पोइट थे उनका ये मानना था कि पोइट्री शुड बी नेचुरल, इसमें किसी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी मानना था कि जो लोग सिटी में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनकी लाइफ आर्टिफिशियल होती है, इसलिए उनकी पोइट्री भी आर्टिफिशियल होती है। जबकि जो ग्रामीण लोग हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, दे आर क्लोजली कनेक्टेड विथ नेचर। वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए उनकी पोइट्री या उनकी जो इमोशंस होती हैं वो नेचुरल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोमांटिक पोइट थे उनका ये मानना था कि पोइट्री में इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। रीजन से ज़्यादा, लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशन को उन्होंने दिया था। इसके बाद एक और थर्ड क्वालिटी है रोमांटिक पोइट्री की, और वह है कि द रोमांटिसिज्म और द रोमांटिक पोएट्स दे गेव मोर इम्पोर्टेंट टू द इंडिविजुअल्स ओवर द इंस्टीट्यूशंस। उनके लिए, रोमांटिक पोएट्स के लिए जो इंडिविजुअल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द चर्च, लाइक द पॉलिटी, लाइक योर लॉ, लाइक योर कोर्ट, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इंडिविजुअल या व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। तो रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलिज्म। रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलिज्म। यह व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, संस्था को, समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी देन एडहेरेंस टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टम एंड अक्सर होता ही है कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर बहुत सारे बॉन्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसे फॉलो करना पड़ता है। उसे सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसे लीगल लॉ फॉलो करना पड़ता है, धर्म के, रिलीजन का, कल्चर का, हर तरह से वह नियमों से बंधा हुआ है। तो रोमांटिक पोएट्स को ये लगा कि इंसान या जो मानव है वो इतने नियमों से बंधा हुआ है कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वह दब जाती है। इसलिए इनका ये मानना था, जो रोमांटिक पोएट थे, इनका ये मानना था कि जो भी व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंस है, हमें उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई रोक या प्रतिबंध नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि रोमांटिक पोइट्री में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जो भी रोमांटिक पोइट थे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी काफ़ी प्रभावित थे। एज यू नो, फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था और ये रिवॉल्यूशन का पर्पज़ क्या था कि द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द मोनार्की। राजा और राजा की सत्ता के खिलाफ लोग
विद्रोह कर दिए। और क्योंकि लोगों का ये मानना था कि द इंडिविजुअल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सिर्फ राजा या उसके अधिकारी या उसकी संस्थाएं ही महत्व नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक नारा दिया गया था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। ये जो स्लोगन था, दिस वाज वेरी, द रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्लोगन, द स्लोगन ऑफ द लिबर्टी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। सो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि रोमांटिसिज्म पे या रोमांटिक लिटरेचर पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। तो ये तो एक जनरल बैकग्राउंड हो गया रोमांटिक पीरियड के बारे में या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ लेट अस कम टू आवर मेन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्रिटिसिज्म। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, कॉलरिज हो, शेली हो या किट्स हो, सबकी अपनी अपनी एक रोमांटिक थ्योरी थी, सबकी अपनी अपनी एक थॉट थी, सबकी अपनी अपनी एक अलग से डेफिनेशन या पोइट्री के बारे में अपना एक ओपिनियन था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स, और आज भी वर्ड्सवर्थ का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना उस समय था जिस समय उन्होंने लिखा था। तो वर्ड्सवर्थ का भी अपनी एक ओपिनियन है पोइट्री के बारे में। और इस वर्ड्सवर्थ को समझने के लिए इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ वर्ड्सवर्थ रिगार्डिंग पोइट्री, देन वी मस्ट रेफर टू द लिरिकल बैलेड्स। अब यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स वाज अ बुक पब्लिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज इन 1798। ध्यान रखिए इस किताब का नाम, द लिरिकल बैलेड्स, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। और इस बुक में 1800 में एक दूसरी एडिशन आती है इस बुक की, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस लिखा। ही एडेड ए प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इन 1800। और उस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ राइट्स अबाउट हिज व्यूज, हिज ओपिनियन ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री क्या है, पोइट्री की सब्जेक्ट मैटर क्या होनी चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में अब हमें बताता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इज कंसिडर्ड एज द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। ऐसा माना जाता है कि इस बुक के लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑफिशियली रोमांटिसिज्म बिगन इन इंग्लिश लिटरेचर in the year 1798 with the publication of the lyrical ballads. Lyrical ballads क्या है? It is a book, it is a collection of poems by Wordsworth and Coleridge. Wordsworth और Coleridge की जो poems हैं उसका ये collection है। इस book में कुल 23 poems हैं, and out of these 23 poems 19 poems are written by Wordsworth and 4 poems are written by Coleridge. So this is Lyrical Ballads is essentially a collection of poems by Wordsworth and Coleridge, and out of the 23 poems, 19 poems are written by Wordsworth and 4 poems are written by Coleridge. इस बुक लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस है उसमें वर्ड्सवर्थ पोइट्री के बारे में अपनी ओपिनियन देता है। और वर्ड्सवर्थ सेज कि पोइट्री क्या है, तो वो पोइट्री की डेफिनेशन देता है। और वर्ड्सवर्थ कहता है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना होगा। इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस एंड रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो दो चीजें इसमें है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस and it takes its origin in recollected tranquility. तो ये तो हो गया उसकी डेफिनेशन के बारे में। वर्ड्सवर्थ का ये भी मानना है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, लिटरेचर में, पोइट्री में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि लिटरेचर में जो किंग्स हैं, जो नोबल्स हैं, जो जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं, एलिट्स हैं, नॉवल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो रोमांटिक पोएट्स थे इनका ये मानना था, दे बिलीव दैट द ऑर्डिनरी पीपल शुड बी रिप्रेजेंटेड इन लिटरेचर।
the ordinary people should find reflection in poetry. साधारण लोग जो गांव में रहते हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पोइट्री में. पोइट्री शुड डील अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल लाइक द फार्मर्स, द लेबरर्स, द वर्कर्स, द विलेजर्स एट्सेट्रा. उनका ये मानना था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पोइट्री में बड़े बड़े लोगों का या बड़े बड़े जो किंग्स हैं, जो जनरल हैं, उनका ही रिप्रेजेंटेशन हो. And so Wordsworth believed that poetry should not merely be intellectual. पोइट्री में सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल या रैशनलिज्म की बात ना करें, बल्कि पोइट्री में इमोशन की भी बात होनी चाहिए. एंड फॉर हिम पोइट्री वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस. पोइट का जो पर्सनल इमोशंस है, पोइट शुड नॉट बी बाउंड बाय द ट्रेडिशन, पोइट शुड नॉट बी बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, कि रूल्स और रेगुलेशन को, नियमों का पालन करके कोई कविताएं नहीं लिख सकता. वर्ड्सवर्थ का ये मानना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति कविताएं नहीं लिख सकता है. वो कविताएं, अच्छी कविता तब लिखेगा जब उसे पूरी आज़ादी रहेगी. वो अपने इमोशंस को लिखे, अपने इमोशंस के बारे में लिखे, वो जो फील करता है, जो महसूस करता है, उसके बारे में लिखे. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, द पोएटिक प्रोसेस. वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने इस प्रीफेस में कि पोएटिक प्रोसेस क्या होता है, पोएट कैसे पोएम कैसे लिखी जाती है, पोएम लिखने की क्या तरीका होती है, इसके बारे में भी वर्ड्सवर्थ ने डिटेल्स में बताया है. तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि देयर आर 4 स्टेजेस इन द पोएटिक क्रिएशन. इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन देयर आर 4 स्टेजेस. 4 स्टेजेस हैं. कौन कौन से? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड इमेजिनेटिव एक्साइटमेंट. तो ये 4 स्टेजेस हैं पोएटिक क्रिएशन में. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड इमेजिनेटिव एक्साइटमेंट. तो सबसे पहले किसी भी पोएम की जब रचना होती है, किसी कविता की जब रचना होती है, तो उसका पहला स्टेज होता है ऑब्जर्वेशन. वर्ड्सवर्थ का ये मानना है कि जब भी कोई पोएट कहीं जा रहा हो या वो इमोशनली जब वो चार्ज हो जाता है, तो उसे बड़े ध्यान से उस चीज़ को देखना चाहिए. अगर वो इमोशनली एक्साइटेड है तो ऑब्जर्व करे, बड़े केयरफुली उस चीज़ को, उस सिचुएशन को या उस सर्कमस्टेंसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करे. और जब ऑब्जर्व कर लेता है तो ये पहला स्टेज होता है. उसके बाद रिकलेक्शन, जो सेकेंड स्टेज है वो है रिकलेक्शन की. बाद में जब वो उसे मौका मिलता है, कभी निश्चिंत में है, तो वो उस सीनरी को या उस समय को दोबारा रिकलेक्ट करे, उसे याद करे. और जब वो याद करेगा, उसके बारे में सोचेगा, तो उसके अंदर दोबारा वो इमोशंस एक्साइट होंगे. जो इमोशन पहली बार उसके अंदर एक्साइट हुआ था, वही इमोशन दोबारा एक्साइट होंगे जब उसके बारे में वो एकांत में सोचेगा. और जब ये दोबारा इमोशन एक्साइटमेंट होगा, जब ये इमोशन दोबारा उसके अंदर आएंगे, अराउज होंगे, तब वो पोएट जो लिखेगा वह एक्चुअल पोएट्री कहलाएगा. तो ये उनका प्रोसेस था पोएटिक क्रिएशन का वर्ड्सवर्थ के अनुसार. कि पोएटिक क्रिएशन में जरूरी नहीं है कि कोई पोएट कहीं जा रहा हो और अचानक उसने कुछ बहुत बढ़िया दृश्य देखा, वो इमोशनली एक्साइट हो गया और वो सोचने लगा कि हम कब बैठे बैठे कागज कलम लेते हैं और कविता लिखते हैं. ऐसा नहीं होता है. वर्ड्सवर्थ का ये मानना है वो कहीं जा रहा है, वो एक्साइटेड है, इमोशनली चार्ज हो गया है, तो उस इमोशंस को वो अपने हार्ट में रिकलेक्ट करे, वो अपने हार्ट में स्टोर कर ले, अपने दिल और दिमाग में उस सिचुएशन को, उस सीन को कलेक्ट कर ले, और बाद में जब उसे समय मिलता है तो उसके बारे में सोचे, कंटेम्पलेट करे और फिर पोएम को लिखे. तो ये हो गए द पोएटिक प्रोसेस. पोएटिक प्रोसेस की 4 जो स्टेजेस होती है. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. जो रोमांटिक पोएट्स हैं, ज़्यादातर रोमांटिक पोएट्स दे वर पैंथिस्ट. एक टर्म है पैंथिज्म. तो ये पैंथिज्म क्या है? पैंथिज्म का अर्थ हो गया कि जब कोई व्यक्ति ये माने कि जितने भी चीज़, जितने भी प्राणी या जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, सभी में ईश्वर का निवास है. ये पैंथिज्म है. तो वर्ड्सवर्थ ये मानता था, वह एक पैंथिस्ट था. उसका ये मानना था कि जो भी चीज़ें हैं नेचर में, वह सिर्फ एक वेजिटेशन नहीं है, वो सिर्फ ट्री या प्लांट या फ्लावर नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है. देयर इज ए डिवाइन प्रेजेंस इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन. वर्ड्सवर्थ कहता है कि देयर इज ए डिवाइन प्रेजेंस इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन. जो भी रचना है, जो भी क्रिएशन है, उसमें एक डिवाइन प्रेजेंस है. तो ये जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं पैंथिज्म. जब भी कोई व्यक्ति इस बात को बिलीव करता है कि हर चीज़ में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, सब में ईश्वर का वास है, सब में एक डिवाइन प्रेजेंस है, तो ये पैंथिज्म
कहलाता है। वर्ड्सवर्थ भी एक पैंथिस्ट था, उसका ये मानना था कि नेचर में जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, एवरीथिंग is there is a presence of God or there is a presence of a spirit in every object of creation. So, dear students, these are the characteristics of literary criticism as explained by वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने जो बताया क्रिटिसिज्म के बारे में या पोइट्री के बारे में, हमने उसके बारे में आपको बताया। अब इस वीडियो को, इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, कि रोमांटिसिज्म क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद लिरिकल बैलेट्स के बारे में मैंने बताया। लिरिकल बैलेट्स ये बड़ा इम्पोर्टेंट बुक है, ये एक जो कि ऐसा माना जाता है कि इस बुक के पब्लिकेशन के साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुई, और इसी बुक में वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी दी है जिसको हम कहते हैं वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे और हम गहराई से बात करेंगे कॉलरिज के बारे में। कॉलरिज भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पोएट था, रोमांटिक पोएट था, और उसकी भी अपनी ओपिनियन है पोइट्री के बारे में। तो अगली लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलरिज की क्या ओपिनियन थी पोइट्री के बारे में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।